गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की। I am thrilled and delighted to once again see such huge gatherings of devotees with such faith in Hanumanji, Sri Hanuman Chalisa, and our Pujya Gurudev Swami Chinmayananda. Once in a millennium, once in a century, one of such great luminaries of the land of Bharat, one of Bhagwan's great manifestations. And don't forget, Vedanta says everyone is a manifestation of Bhagwan. But through whom Bhagwan's light shines with such glory that the establishment of Dharma as well as the means for our prosperity, peace, happiness, not for a short time, but for a long period of time takes place. And one such luminary has been our Pujya Gurudev Swami Chinmayananda, and whose love vision has now taken us on this path of devotion, knowledge, and dedicated seva to reach out to the maximum people in this 75th year that Pujya Gurudev, since Pujya Gurudev started this mission of love. Congratulations, as well as indeed it is Gurudev's blessings that many over these years have got the opportunity not only to benefit from Chinmaya mission, but be able to be part of this great journey, movement that Pujya Gurudev started with their seva, with their contribution. And as we approach the centenary years, Pujya Gurudev's work should reach the maximum people, and in fact every Bharatiya. Pujya Gurudev spread the knowledge of Vedanta, Sanatana Dharma, and particularly through the Bhagavad Gita. Each day of his life ever since he started his discourses on the Bhagavad Gita, every day of his life was to spread this knowledge. Because it is this knowledge that is the foundation of our rich Bharatiya culture and
gives us all the means in our life to be happy, peaceful, and positive contributors to the environment, to the society. And therefore, as we do this Havan here, two things that we can imbibe in our life and make it our daily sadhana. The Gita Panchamrit, 5 verses of the Bhagavad Gita. Not only every Hindu but every Bharatiya memorizes and sees that they spread it to the maximum people possible, and especially to the following generation, so that whenever we meet, we have got something in common. Everybody has got reverence for the Bhagavad Gita. Yet, very, very few would know even one verse of the Bhagavad Gita. The very essence of the Bhagavad Gita, our Pujya Guruji has chosen to summarize everything that we need in our life. And these 5 verses of the Bhagavad Gita, if all of us recite daily, spread daily, and whenever we meet in large gatherings, we can chant it and feel that oneness in our heart, and the world can see our unity. Something that is unifying. Please remember that. Another thing that Pujya Gurudev inspired us was to hold Shri Hanumanji as our ideal. A Jnani, Bhakt, Sevak. And what was impossible for Hanumanji? Nothing. Nothing was impossible. And one thing that Hanumanji has demonstrated, that we have a responsibility. And therefore to be Rama Kaj Karibe Ko Atur. Be ever enthusiastic to do Ramchandraji's work, and that is to have dharma in our life as well as establish dharma in society. There was nothing that Hanumanji couldn't do. And Sitaji, who represents our Adhyatmik Sanskriti, culture, which very often gets kidnapped, usurped, to bring that back for benefiting the entire world has been the work of Hanumanji, has been the work of our Pujya Gurudev. And as an inspiration, Pujya Gurudev in Siddhbadi, to protect our Sanskriti and Dharma, when he established the Sandipni Himalaya Ashram at Siddhbadi and brought Pavanasuta Hanuman there and inspired us at that time and asked our Guruji to teach us the Hanuman Chalisa. Ever since that, we have seen in our lives, and I'm sure all of you gathered here know what strength, what blessings
and every form of blessing that we require in our life, and every possible capacity that we need to accomplish our duties, our tasks, and attain not only success, but attain success of great significance. All this inspiration we get from the knowledge of the Bhagavad Gita and demonstrated in the life of Hanumanji. And with this tradition of the Vedic Havan, the devotion imparted by our Puranic literature, and the great ideal that our great rishis, saints, sages, and our own Gurudev, Swami Chinmayananda, has demonstrated, our wish is that our Pujya Gurudev, in whose heart was Hanumanji and in whose heart is Sri Ram, Mother Sita and Lakshmanji, reach every home, reach every heart, and enrich every life. With that and all good wishes, that may we all be blessed with what Mother Sita gave to Hanumanji, Ram Rasayan Tumre Pasa, Sada Raho Raghupati Ke Dasa. With that, I pray, and as we chant Hanuman Chalisa, for each one's well-being, we था तो उनको अच्छा नहीं लगता था सुनना। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी जानते थे इस बात को, इसलिए आप हनुमान चालीसा में एक बार देखोगे कि जब हनुमान जी की स्तुति के शब्द आते हैं तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी तुलसीदास जी को देख रहे हैं, ये क्या बोल रहे हो। तो वो एकदम ऐसा शब्द बोलते थे कि हनुमान जी को स्वीकार करना पड़ता था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, बड़ा हो गया तो एकदम रामदूत अतुलित बल हनुमान। अब हनुमान जी कह तो नहीं सकते कि मैं रामदूत नहीं हूँ। अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत राम, उसका भी विरोध नहीं कर सकते थे। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वर्ण विरान जगह। चलते जा रहे हैं और हनुमान जी ने फिर देखा उनकी तरफ, क्या बोलते जा रहे हो, तो कहा राम काज करने को आतुर, उनको मानना पड़ा। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, मानना पड़ा। आपको थोड़ा संकेत कर दिया, आप पढ़ना पूरा हनुमान चालीसा। उसमें बहुत मज़ेदार बात है कि जहाँ जहाँ हनुमान जी की तारीफ की तो देखते रहे। तो तुलसीदास जी ऐसा शब्द बीच में डाल देते कि हनुमान जी को मानना ही पड़ता। हाँ, ऐसा है, अच्छी बात है। अब हम सभी हवन के लिए आतुर हैं, तो हम सबसे पहले तो चिन्मय मिशन मुंबई ने इतना सुंदर आयोजन किया है, उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ और प्रशंसा करता हूँ। तो क्या करें, मेघना मुकुर और हमारे मैन ऑफ द मैच तो स्वामी स्वात्मानंद है। ये तो पूरे सबका हार्दिक आयुधमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमां आयुधमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमां देवी पवित्रं कुरु शासनं। थोड़ा पानी। अस्त्राय भट्ट अस्त्राय भट्ट अस्त्राय भट्ट अस्त्राय
ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लीजिए संकल्प, थोड़ा जल कवर करना है। कीप इट इन योर लेफ्ट
which was led by Pujya Guruji Swami Tejo Maharaj. We are now going to start chant 2 of round 1. This will be led by Isha. Now
स्वामी चिन्मयानंद जी ने शुरू किया था 1951 में, तो ये हमारा 75th ईयर है चिन्मय मूवमेंट का। तो पूरे विश्व में 80 से ज़्यादा सेंटर्स में ऐसा हनुमान हवन का आयोजन हो रहा है। सबसे बड़ा आयोजन यहाँ पर मुंबई में हो रहा है। अलग अलग जगह पर 27 कुंड, 108 कुंड, यहाँ पर 276 कुंड का हनुमान चालीसा हवन हो रहा है। हमारा भाव ये है कि इससे हम मुंबई के लिए हमने लगाया है चांट मुंबई शांत मुंबई स्लोगन है हमारा, कि सभी साथ मिलकर चांट करें, सभी की सुख समृद्धि शांति के लिए, शक्ति के लिए, भक्ति के लिए, मुक्ति के लिए, और पूरे विश्व के कल्याण के लिए भी ये चैंटिंग हो रहा है। हजारों यजमान यहाँ पर आए हुए हैं। पूज्य गुरुजी स्वामी तेजोमयानंद जी हैं, स्वामी स्वरूपानंद जी हमारे ग्लोबल हेड हैं, उनकी उपस्थिति में सत्संग भी हुआ है यहाँ पर। और ये हनुमान चालीसा का 21 बार पाठ होगा यहाँ पर। 10,000 से ज़्यादा लोग साथ में मिलकर यहाँ पर पाठ कर रहे हैं। और ये कलेक्टिव एनर्जी से यही प्रार्थना है कि एवरीबडी बिकम स्ट्रॉन्ग, सक्सेसफुल, हैप्पी एंड देयर इज पीस इन द होल वर्ल्ड। और ये चिन्मय मिशन का कार्य ही यही है, टू गिव मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल फॉर द मैक्सिमम टाइम। ये मोटो हमारे चिन्मय मिशन का है। सो अलग अलग जो हमारी स्कूल्स हैं, वी हैव मोर देन 100 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वी डू सेवा इन 1250 विलेजेस इन हिमाचल प्रदेश, इन आंध्र प्रदेश, इन तमिलनाडु, इन उड़ीसा, और हम महाराष्ट्र में भी ये चिन्मय ऑर्गेनाइजेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट अब शुरू करने वाले हैं। और वी ऑल्सो हैव मैनी सेंटर्स इन 25 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। हॉस्पिटल्स हैं, आश्रम्स हैं, ऑर्फनेजेस हैं, ओल्ड एज होम्स हैं। तो ये सेवा का कार्य है। और वेदांत के आधार पर, ज्ञान के आधार पर वी वर्क ऑन रिवाइविंग सनातन हिंदू धर्म, मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ द ग्लोरी ऑफ व्हाट इज सनातन हिंदू धर्म, मेकिंग देम प्राउड एंड प्रैक्टिसिंग हिंदूज। एंड व्हेन वी से हिंदू, वी मीन दैट वी रेवियर एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड। हमारी परंपरा यही है कि हम मदात्मा सर्वभूतात्मा, सब में एक ही आत्मा का हम दर्शन करते हैं। तो ये जो हवन है, इट इज़ ऑल्सो अ सिंबल ऑफ ग्रेट इंक्लूसिविटी। यहाँ पे विदाउट एनी कास्ट, कम्युनिटी, क्रीड, जेंडर, एनी डिफ्रेंशिएशन, एवरीबडी इज़ वेलकम। सभी लोग बैठकर यहाँ पर हवन कर रहे हैं। और आप ये भी देखेंगे कि कई कुंडों में जो हवन कर रहे हैं, वो जो पुरोहित है वो स्त्रियाँ भी हैं। तो जो लोगों को ये लगता है कि हनुमान जी की पूजा स्त्री नहीं कर सकती, वी वॉन्ट टू ब्रेक दैट मिथ ऑल्सो, कि न केवल हनुमान जी की हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैनी ऑफ द लेडीज, दे आर गोइंग टू सिट एंड दे आर द प्रीस्ट, दे आर ट्रेन्ड इन आवर सांदीपनि साधनालय। उनको जनेऊ भी प्राप्त हुआ है और वो अच्छे विधि से जो गाइडेंस हो रहा है, दे विल बी डूइंग द हनुमान चालीसा हवन। और भाव यही है कि हनुमान जी हमारे संकटों को दूर करें और हमारे हृदय में राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो इस ध्येय से ये हम कर रहे हैं। और यहाँ पर ये आधे दिन का प्रोग्राम है। कितने हवन कुंड है यहाँ पे? 276 हवन कुंड हैं। और यहाँ पर कुमार मंगलम बिरला जी आए हैं, अजय पीरामल जी आए हैं, और दिव्या मफतलाल जी हैं, मुकुल पटेल हैं, मेघना पटेल हैं, VHP के स्पोक्स पर्सन शिवराज नायर जी हैं, स्वामी विज्ञानंद जी सुबह आकर गए। अलग अलग संस्थाओं से भी साधु संतों को हमने बुलाया था, सभी आए हैं यहाँ पर। अलग अलग संस्थाओं से, इस्कॉन से आए हैं, स्वामीनारायण से आए हैं, परम प्रमाण ट्रस्ट से आए हैं, अलग अलग संस्थाओं से भी लोग आए हैं। तो हम सब साथ हैं। वी आर वर्किंग टुगेदर फॉर द बेनिफिट ऑफ द होल ह्यूमैनिटी। तो दिस इज आवर मेन पर्पस, टू इंस्पायर पीपल विथ ज्ञान, भक्ति, सुख, समृद्धि एंड शांति। ये इसका प्रयोजन है। और स्वामी चिन्मयानंद जी ने जो शुरू किया वो कार्य अभी आगे ही बढ़ते जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव। इच्छा प्रकट हुई है, ऐसी इच्छा प्रकट होगी तो मुंबई में भारत के पूरे विश्व को उसका फायदा होता है। हाँ, तो ये जो चांट मुंबई शांत मुंबई तो स्लोगन यहाँ के लिए है, लेकिन हर सेंटर में हम ऐसा कर रहे हैं। जैसे कोलकाता में हुआ तो हमने बोला चांट कोलकाता, शांत कोलकाता। कल ही ट्रिची में हुआ, उसके पहले हमारे कल्याण में हुआ। सो हर जगह पर जहाँ भी हम ये कर रहे हैं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए, शांति के लिए कर रहे हैं। ये प्रकल्प वी हैव टेकन फॉर दैट पर्पस। ये जो आज हवन हुआ 108 समष्टि श्री हनुमान हवन जो हुआ, ये
विश्व का एक बहुत ही जाना ग्लोबल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन चिन्मय मिशन के द्वारा ये किया गया और इसका शीर्षक रखा गया चैंट मुंबई शांत मुंबई। और जब भी संत महात्मा के मुंह से ये निकलता है, एक संकल्प निकलता है चैंट मुंबई शांत मुंबई, तो ये मुंबई के लिए नहीं, भारत के नहीं, पूरे विश्व के लिए एक शुभ होता है। इसका मेन मकसद है ये हवन करने का, सुख शांति बरकरार रहे पूरे विश्व में। आपका सहयोग कैसे है इसमें? मेरा सौभाग्य है कि मुझे पाठ करने का मौका मिला, सेवा करने का मौका मिला, तो मैं चिन्मय मिशन के ग्लोबल हेड स्वामी स्वरूपानंद जी, गुरु जी स्वामी तेजोमयानंद जी और मुंबई के आचार्य स्वामी स्वात्मानंद जी ने मुझे मौका दिया है सेवा करने का और हवन में पार्ट लेने का। तो मैं अपना सौभाग्य, मैं मानता हूँ कि मेरा सौभाग्य है करके। देखिए आज मीडिया जो आई इसका बहुत बहुत आभार।